Hello everyone, welcome to the Sapiens Talk. So, in this video, we are going to discuss the fourth symptom of the cardiovascular system, that is edema, basically pedal edema. So, हमने पहले इसके पहले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग कैसे हिस्ट्री ले सकते हैं अगर एक पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है चेस्ट पेन के साथ, पाल्पिटेशन के साथ और सिनकोप के साथ. सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट with pedal edema or how to take a case if a patient has a chief complaint of pedal edema and how to present it. So what we will discuss in this video, first of all हम देखेंगे कि edema होता क्या है, okay, then some also terms related to edema. Second, we will see about what are the differentials of pedal edema, then history taking steps or some important questions which are necessary to ask in case of history taking, then negative history related to each specific condition, and then finally we will reach finally to a diagnosis on the basis of history. Let's move further. So first thing, what is edema? Edema hota kya hai? See, edema represents an excess of interstitial fluid that become evident clinically. Okay, so edema क्या होता है? Just an interstitial fluid जो है उसका excess हो गया है जिसके वजह से it is gets evident clinically evident हो गया है. Okay, it's easy, very easy. Then types. What are the types of edema? See, so the edema can be localized, okay, or the edema can be generalized. So localized edema can be in the ankle, or leg, which is known as pedal edema, okay, or the localized edema can be somewhere else at other side, okay. Then comes generalized edema. Generalized edema basically means the edema in some serosal cavities, okay, like pleural cavity, pericardial cavity or peritoneal cavity, along with pedal edema, okay. So the edema, you can see the pedal edema can be just individual, that is it can be localized, or the pedal edema can be a part of generalized edema. So it is very important thing, okay. The pedal edema can be a part of generalized edema, or there can be only and only pedal edema is there. Okay, let's move further. Anasarca. So what is anasarca? Basically it is gross or generalized edema, जिसकी हमने बात करी ऊपर. Gross or generalized edema is known as anasarca. What is ascites? Ascites is basically edema in the peritoneal cavity. Okay. What is hydrothorax? Hydrothorax is basically hydrothorax or pleural effusion, can also see effusion. So edema in the pleural cavity, okay. So these are some important terms related to edema which you must know. Now moving further, differentials. What are the differentials of edema? See, remember this picture. Basically हम कोशिश करेंगे pedal edema के causes को याद करने के with the help of this picture. It is a very important picture. See, okay. So here are plasma proteins, okay, plasma protein. So plasma proteins are related to oncotic pressure. So if plasma proteins are less, means the oncotic pressure will be less and the fluid will move from this capillary to the interstitial space and will lead to the edema. So what are the causes due to which the plasma protein will decrease? Okay. See, with the patient, अगर पेशेंट माल न्यूट्रिशन है, पेशेंट न्यूट्रिशन ही कम ले रहा है तो उसके वजह से उसके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो सकती है, या फिर पेशेंट न्यूट्रिशन अप्रोप्रिएट ले रहा है बट एब्जॉर्प्शन उसका पुअर है, ओके. सो देयर कैन बी माल एब्जॉर्प्शन, और या फिर दोनों सही है बट उसके बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, दैट इज ड्यू टू लीवर फेलियर कैन बी देयर, या फिर प्रोटीन बन भी रहा है बट प्रोटीन उसके बॉडी से लॉस हो जा रहा है, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम. So all these causes will lead to decrease in
plasma protein that will eventually lead to decrease in oncotic pressure, and finally the fluid will shift from the capillary within the capillary to the interstitial space and will lead to edema or pedal edema. Okay, now move further. Okay, see, there is a fluid running in the capillary, so the fluid is linked to hydrostatic pressure. Okay, fluid is linked to hydrostatic pressure. So if hydrostatic pressure is increased, that will again push the fluid from the capillary space into the interstitial space. So what are the causes due to which there can be increased hydrostatic pressure at the level of capillary? There can be some right-sided heart failure or congestion, or there can be some like here, some venous obstruction. venous obstruction क्यों हो सकता है? venous obstruction हो सकता है ड्यू टू वेरिकोस वेन्स के वजह से हो सकता है, और ड्यू टू सम pelvic tumor which is obstructing the vena cava, और ड्यू टू pregnancy के वजह से हो सकता है. Okay, now move further. There is lymphatics. So basically lymphatic क्या करते हैं? lymphatic interstitial fluid को drain करते हैं. Okay, so if lymphatics are damaged or lymphatics are obstructed, there will be again increase in interstitial fluid, eventually leading to edema. So what are the causes that can obstruct lymphatic system? Like some infection, filaria, okay, or some radiation injury to the lymphatic, or there can be some malignancy infiltrating the lymphatics, or some surgeries like breast surgeries which can lead to upper limb edema. Okay, so basically these are the three causes that can lead to edema. Okay, again see, so hydrostatic pressure. Okay, second one is oncotic pressure, and third one is lymphatic blockage. And also there is a fourth entity known as increased capillary bed permeability. Okay, कैपिलरी बेड की परमेबिलिटी बढ़ गई, तो सो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? हियर इज अ कैपिलरी बेड. सो कैपिलरी बेड परमेबिलिटी कैन बी इंक्रीज लाइक इन केस ऑफ सम इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन. ओके, और लाइक सेप्सिस में ही ऐसा हो सकता है, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ओके, सो दीज आर द 4 causes फॉर इडिमा. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसमें हमने देखा, डिस्कस किया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सम वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लाइक वेरिकोसिटी हो सकती है, या पेल्विक ट्यूमर्स हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी हो सकती है. और ऑन्कोटिक प्रेशर, decrease in oncotic pressure. Why oncotic pressure will decrease? Due to decrease in plasma proteins. And why plasma protein will decrease? Either patient is not taking nutrition well, malnutrition, या फिर न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन, या फिर उसके बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही प्रोटीन की, दैट इज ड्यू टू लिवर फेलियर, और जो प्रोटीन बन भी रहा है वो लॉस हो जा रहा है ड्यू टू nephrotic syndrome. So all these causes will lead to decrease oncotic pressure, and eventually the fluid will leak from capillary to the interstitial space. देन लिम्फेटिक ब्लॉकेज हमने देखा, लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो ड्रेन नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल लीड टू एडिमा. एंड ऑल्सो कैपिलरी बेड, जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, कैपिलरी बेड है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ती? बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, सम इन्फ्लामेशन, लोकलाइज्ड, ओके, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन, और सीवियर सेप्सिस, और देयर कैन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो कॉजेज ऑफ एडिमा, again see, increased total extracellular fluid, CHF, renal failure, liver failure, local venous pressure increase कर गया due to some DVT और venous insufficiency, that is again varicosity, और प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है पेल्विक ट्यूमर. ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, लिवर फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से,
कैपिलरी परमेबिलिटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ लोकल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सीवियर सेप्सिस हो सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट. Then the fifth one is lymphatic obstruction, the infection like filariasis or LGV, malignancy, radiation, or some congenital anomaly also can be there. So important this table, very very important table. Okay, let's move further. So now this chart, this is very important. See, सो हियर हमने क्या किया, पहले पीडल एडिमा को दो में तोड़ दिया कि पीडल एडिमा हो सकता है कि इट कैन बी यूनिलेटरल हो सकता है, पीडल एडिमा बायलेटरल हो सकता है. तो यूनिलेटरल में क्या कॉजेज हो सकते हैं? ठीक है, तो पीडल एडिमा मान लो यूनिलेटरल पेशेंट आता है, पेशेंट प्रेजेंट विद यूनिलेटरल एडिमा और यूनिलेटरल पीडल एडिमा. If it is acute, what will you think? You will think of DVT, you will think of cellulitis, you will think of compartment syndrome. आप तीन चीज सोचो, क्या क्या? DVT, cellulitis, compartment syndrome. Okay. अगर पेशेंट यूनिलैटरल पीडल एडिमा के साथ आता है बट ऑफ क्रॉनिक ड्यूरेशन, व्हाट विल यू थिंक? वीनस इनसफिशिएंसी और लिम्फेडिमा ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. रिमेंबर दीज टू, द डीवीटी और सेलुलाइटिस, डीवीटी और सेलुलाइटिस में पेन होता है. ओके, पेन के साथ प्रेजेंट करेगा. ओके, नाउ मूव फर्दर. इफ अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसका बायलैटरल पीडल एडिमा है और वो एक्यूट, बहुत ही एक्यूटली डेवलप हुआ है, तो व्हाट विल यू थिंक? यू विल थिंक ऑफ ड्रग्स. और ड्रग्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. अदर ड्रग्स क्या हो सकती है? एनएसएड हो सकता है और स्टेरॉइड भी हो सकती हैं, बट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्रॉनिक पेशेंट है, बायलैटरल पीडल एडिमा का और क्रॉनिक ड्यूरेशन का है उसका एडिमा, देन इसको हमने फर्दर दो कॉज में तोड़ा. इट कैन, द कॉजेज कैन बी सिस्टमैटिक कॉजेज और इट कैन बी नॉन सिस्टमिक कॉजेज. सिस्टमिक में क्या क्या आ जाता है? हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज, रीनल डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. बेसिकली रिमेंबर दीज थ्री: हार्ट, लिवर, किडनी. हार्ट, लिवर एंड किडनी. ओके. नॉन सिस्टमिक में क्या हो सकता है? ड्रग्स हो सकती हैं, वीनस इनसफिशिएंसी हो सकती है, अगेन लिम्फेडिमा हो सकता है, पेल्विक ट्यूमर और इडियोपैथिक एडिमा. Okay, idiopathic edema which is commonly seen in female due to throughout the day due to upright posture. Okay, so venous insufficiency and lymphedema में आपको डल एक्टिंग पेन देखने को मिलता है. यहाँ पे हमको कहाँ पेन मिला था? डीवीटी में एंड सेलुलाइटिस में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, रिमेंबर दिस. नाउ मूव फर्दर. नाउ हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स इन लेग swelling. Okay, one minute, there is little problem here. Yeah, now so see, what are the headings? Onset, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, वेरिएशन, एसोसिएटेड फीचर्स. तो 5 हेडिंग्स में आपको हिस्ट्री लेनी होगी पीडल एडिमा की. सी, ऑनसेट. ओके, सो इफ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद पीडल एडिमा, व्हाट विल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क? दैट इज ऑनसेट, कि ये जो आपका सूजन हुई है पैरों में, ये क्या अचानक से हुई या धीरे धीरे हुई? तो अचानक से अगर सूजन हुई है आपके पैरों में, तो मतलब पेशेंट के पैरों में, तो क्या कारण हो सकता है? हमने ऊपर देखा था. ओके, सो एक्यूट है प्रेजेंटेशन और यूनिलैटरल लिम है तो डीवीटी हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है. एक्यूट प्रेजेंटेशन है बट बायलैटरल स्वेलिंग है, दोनों पैरों में सूजन है, तो क्या हो सकता है? सम ड्रग्स हो सकती हैं लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हमने यहाँ पे देखा. ओके, और ग्रेजुअल स्वेलिंग. ओके, तो मोस्ट, तो जो हमने डिस्कस किया कि डीवीटी, सेलुलाइटिस, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन यूनिलैटरल एंड ड्रग्स इन बायलैटरल. सो ऑल दीज आर एक्यूट. इसके अलावा जो होते हैं कंडीशंस वो यूजुअली ग्रेजुअल होते हैं ऑनसेट के. देन सेकेंड चीज हम पूछेंगे कि प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन में हम क्या पूछ सकते हैं? इसको यहाँ से हटा दीजिए. साइट, कि सबसे पहले आपको सूजन कहाँ शुरू हुई, देन एक्सटेंट, वो कहाँ से शुरू हुई, फिर कैसे कैसे वो बढ़ती गई सूजन आपकी, और क्या वो सूजन आपके एक पैर में है या सूजन आपके दोनों पैरों में है. तो ये 3 सवाल हो जाते हैं यहाँ पर. सी, सो बेसिकली हियर इट इज कि हार्ट फेलियर. ठीक है, हार्ट फेलियर हम लेते हैं. हार्ट फेलियर में भी राइट साइड हार्ट फेलियर. सो क्या होता है, जब राइट साइड हार्ट फेलियर जैसे जैसे उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे एडिमा असेंड करता जाता है, ऊपर आता है. सबसे पहले कहाँ होता है? एंकल में होता है. ओके, एंकल में सबसे नीचे. देन उसके बाद वो बढ़ेगा, लेग्स में आएगा, लेग्स से भी ऊपर चढ़ेगा, थाइज में, देन जेनेटेलिया, देन अप टू एब्डोमेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. ओके, सो दिस इज अ प्रोग्रेशन, एक्सटेंट. ओके,
एंड लैटरलिटी हमने देखी ली, यूनिलैटरल लोकलाइज्ड कॉजेज आर जनरली यूनिलैटरल, ओके, और जनरलाइज्ड कॉजेज लाइक हार्ट, लिवर, किडनी रिलेटेड कॉजेज आर बायलैटरल। हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये बायलैटरल पीरियड एडिमा कराएंगे आपका। देन कम्स ड्यूरेशन की आपका ये जो पैरों में सूजन है वो कितने समय से है, ये पूछ सकते हैं। देन वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स अगेन एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। सी वेरिएशन स्वेलिंग का ओवर द डे हो सकता है और विद पोस्चर के साथ वेरिएशन हो सकता है। सी इफ द स्वेलिंग इज वर्स्ट इन द इवनिंग, तो स्वेलिंग इवनिंग अगर पेशेंट बता रहा है कि हमारे जो पैरों में सूजन रहती है वो शाम के वक्त या रात के वक्त सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन जब हम फिर सोने जाते हैं और सोते हैं या लेटते हैं फिर सुबह उठते हैं तो सूजन अचानक से कम मिलती है हमें। तो ऐसा बेसिकली देखने को मिलता है लाइक इन केसेस ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिल सकता है आपको, और इन केसेस ऑफ वेनस इनसफिशिएंसी भी देखने को मिल सकता है। बट वही डिफरेंस है कि जो राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से अगर जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो बायलैटरल पैटर्न होगा, जबकि अगर वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से जो पैटर्न हमको मिल रहा है वो यूजली यूनिलैटरल होता है। ओके, सो वर्स्ट इन इवनिंग कैन बी सीन इन कार्डियक कॉज लाइक राइट साइड हार्ट फेलियर। एंड ये क्यों हो रहा है इवनिंग में वर्स, बिकॉज पेशेंट सुबह से लेके शाम तक अगर मान लीजिए खड़ा है तो इट कैन लीड टू मोर इडिमा इन द इवनिंग। सी इन राइट साइड हार्ट फेलियर, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर का पेशेंट अगर वो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करता है, लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो उसके एंकल में इडिमा देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, राइट साइड हार्ट फेलियर अगर प्रोलॉन्ग बेड पे लेटा होता है, बेड पे लेटा होता है तो वो उसका प्री सैक्रल आपको एडिमा देखने को मिलेगा। ओके, so basically gravity dependent very much, right side heart failure edema is gravity dependent and but you can see edema due to cirrhosis की वजह से अगर edema हो रहा है और liver failure की वजह से edema हो रहा है या edema due to nephrotic syndrome की वजह से हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई postural variation या within the day variation नहीं देखने को मिलता। ओके ओके, नाउ देन एसोसिएटेड फीचर्स क्या है, लाइक पेन, रेडनेस फॉर्म, तो ये मैंने बताया था कि पेन रेडनेस फॉर्म बेसिकली आपको मिल सकता है डीबीटी में, मिल सकता है आपको सेलुलाइटिस में, मिल सकता है। अगर पीडल एडिमा के साथ साथ ब्रेथलेसनेस है, आर्थोपनिया पीएनडी है, पिंक फ्रॉथी स्पुटम आ रहा है, तो दिस कैन बी हार्ट फेलियर हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल रहा है, जॉन्डिस मिल रहा है, तो पीडल एडिमा के साथ अगर, तो इट कैन बी लीवर फेलियर। ओके, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और फ्रॉदी यूरिन अगर मिल रहा है पीडल एडिमा के साथ, तो क्या सोचोगे आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हो सकते हो या रीनल फेलियर्स हो सकते हो। ओके, सो हियर आर सम इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड फीचर्स। नाउ अगेन सी यू कैन रिमेंबर दिस बाय ओ, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, ओपीडी, वीए, ओपीडी, वीए। ओके, सो क्या क्या फिर से देखते हैं। ऑनसेट, क्या ये आपकी जो पैरों में सूजन है वो अचानक से शुरुआत हुई या धीरे धीरे हुई, ऑनसेट। देन प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में हम लोग क्या पूछेंगे, तीन चीजें पूछते हैं, SEL साइट, एक्सटेंट, लैटरलिटी। सबसे पहले सूजन आपको कहाँ पे हुई, फिर कैसे कैसे ये सूजन बढ़ी, और क्या सूजन आपकी एक पैर में है या दोनों पैरों में है। ओके, देन ड्यूरेशन, कितने समय से आपके पैरों में सूजन बनी हुई है। देन वेरिएशन, क्या दिन भर में ये सूजन बढ़ती घटती है या आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय तक आप जब खड़े हैं तो ये सूजन बढ़ रही है या कम हो रही है। देन एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। सो इन दिस वे वी विल टेक द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट विद pedal edema. Okay, now further see these some important points with respect to each cause. So if the cause of pedal edema is cardiac, so there can be associated orthopnea, PND और exertional dyspnea. Okay, और अदर फीचर्स हमें मिल सकते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के, लाइक एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर, और आगे एसाइटिस कैन बी देयर आल्सो, और पोस्टल वेरिएशन जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। If the cause of pedal edema is hepatic, it is associated with significant degree of ascites. Ascites बहुत ज़्यादा मिलती है hepatic और liver failure के केस में as compared to renal cause और cardiac cause. Remember this very important point. Okay? तो बेसिकली हार्ट फेलियर के पेशेंट में एसाइटिस का बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल एसाइटिस होती है, बट हार्ट फेलियर के पेशेंट में मेनली जो एडिमा होता है वो एंकल एडिमा होता है, दैट इज पीडल एडिमा होता है। सिमिलरली अगर आप रीनल में देखेंगे, रीनल में भी स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर जाएंगे आप, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एडिमा होता है वो जनरलाइज होता है यूजली बच्चों में देखने को मिलेगा, पफी फेस होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। ओके, सी हेपेटिक इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ एसाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आपको क्रॉनिक लिवर फेलियर के फीचर्स मिल जाएंगे, ये हम लोग एग्जामिनेशन में देखेंगे, और जॉन्डिस मिलेगा आपको अगर लिवर फेलियर है तो।
क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से अगर पीडल एडिमा हो रहा है, देयर कैन बी यूरिमिक साइंस और सिम्टम्स लाइक यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी हो सकती है, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस कैन बी देयर. ओके, देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, पेरिऑर्बिटल एडिमा कैन बी देयर, पफी फेस इज देयर, फॉर द यूरिन की हिस्ट्री मिल सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरिन पास करता है पेशेंट. ओके, now we will see a example sentence and example sentence. See, a patient was apparently well 6 months ago when he first noticed swelling over both feet. Okay, so both feet हमने laterality देख ली, laterality, okay, that is it is bilateral है. onset gradual धीरे धीरे हुआ उसको, ये onset हमने देख लिया. The swelling has progressively increased, okay, initially involving the ankle and later extending to the legs bilaterally. Okay, so ये हमारा है extent कैसे कैसे हुआ swelling का. Okay, it has been present continuously for last 6 months. Okay, ये duration, this is the duration of the swelling. The swelling is more prominent in the evening after a day's activity and decrease overnight after lying down and elevating the neck. So here is a variation or aggravating or relieving factor. The patient also complains of exertional breathlessness for the same duration. He gives a history of orthopnea requiring 2 pillows while sleeping and episodes of paroxysmal nocturnal dyspnea. Okay, so these are the associated features. Okay, associated features. So in this way you will write your history with risk for pedal edema. So you have to diagnose this, what is the case. Okay, let's see. So there is no history of redness or local warmth, pain, fever, trauma. तो ऐसी हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो हमारा क्या क्या रूल आउट हो जाएगा, डीवीटी इसको नहीं हो सकता, इसको सेलुलाइटिस नहीं होगा, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होगा. जॉन्डिस की अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो हम क्या रूल आउट कर सकते हैं, हम रूल आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई हिपैटिक सिरोसिस नहीं है. ओके, हिपैटिक सिरोसिस नहीं हो सकता ये केस. फ्रॉदी यूरिन या डिक्रीज यूरिन आउटपुट की हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो वी कैन रूल आउट दैट ये केस जो हमारा एग्जांपल वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं हो सकता, ये क्रॉनिक रीनल फेलियर नहीं हो सकता. ओके, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ स्टेटोरिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, सो ये माल एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से पेडल एडिमा नहीं हो रहा है इसका. ओके, नो हिस्ट्री ऑफ स्किन चेंज ओवर द लेग, तो ऐसा जनरली देखने को मिलता है लिम्फेडिमा में. तो अगर ये भी नहीं है तो मतलब हमारा एग्जाम्पल वो लिम्फेडिमा भी नहीं, तो देन वो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है. सी, सो यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पोस्टल वेरिएशन मिल रहा है. ओके, कि एट द इवनिंग टाइम स्वेलिंग बढ़ जाती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री है, पीएनडी की हिस्ट्री, विच वेरी स्पेसिफिक फॉर द हार्ट फेलियर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेल. ओके, so thank you so much for watching this video. If you like it, go share, subscribe and follow for more. Thank you.